برطانیہ کے وزیر اعظم کے ایک وقت میں کینڈیڈیٹ بن گیا. فورن منسٹر کی حیثیت سے اور اسپیشل انوائٹ ٹو پرائم منسٹر برطانیہ کی حیثیت سے آپ نے وہ کیا کار حادثات انجام دیے؟ وزیر خارجہ کب بنے پھر آپ؟ 2022 میں بورس جانسن صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حکومت میں آئیں اور فورن آفس میں جائیں اور فورن منسٹر بنیں. آپ کی جو لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے پاکستان کی سپورٹ کی، پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس ملا. یونائٹڈ کنگڈم نے ابھی جو فلسطین کو بھی ریکگنائز کیا تھا. آپ سمجھتے اچھا فیصلہ ہے برطانیہ کا فلسطین کو ریکگنائز؟ ایبسلیوٹلی. پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب ہیں جو فلسطینین اتھارٹی کے لیڈر ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی سولوشن ہے. ٹرمپ کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کیا ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھی پیش رفت ہے؟ برطانیہ کا اور بالخصوص پاکستان کا کردار عالمی امن کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں برٹش ایئر ویز نہیں جا رہی تھی. جو میریٹ ہوٹل میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا 2008 میں، برٹش ہائی کمیشن تھے اس وقت، کرسچن ٹرنر، ٹام ڈرو لندن میں ہوتے تھے، عباس صاحب اینڈ نفیس زکریا صاحب. 2005 میں جو کشمیر کا ارتھکویک ہوا تھا اس میں میرے اپنے 25+ فیملی ممبرز شہید ہوئے تھے. میرے گرینڈ فادر اس وقت شہید ہوئے تھے. سینکشنز ادارے تھے جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، جو برما میں اور جو روہنگیا مسلمانوں کا. اسپیشل انوائے فار دا پرائم منسٹر 2019 کی بات ہے. اسلاموفوبیا بھی رائز پر تھا، اینٹی سیمٹزم بھی رائز تھا. ودن 4 months ہم نے 27 ملک کی الائنس سیٹ اپ کی. بیلنسنگ یور لیگل کیریئر اینڈ ان اٹس ٹف. I was very fortunate، میرے پاس بہت شاندار پولیٹیکل مینٹورز تھے کہ یہاں محترمہ بینظیر بھٹو آئی ہوئی ہیں اور ان کو بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. ابھی میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں پولیٹیکل جرنی ایور 14 years. والد صاحب تھے، وہ بھی پہلے کشمیر کے پالیٹکس کے حکومت کے ممبر تھے. میں آیا تھا امی کے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ، مجھے کوئی انگلش نہیں آتی تھی. ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ برطانیہ کی سیاست کا بہت بڑا نام، عالمی شہرت رکھنے والی شخصیت، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، سابق وزیر خارجہ، سابق اسپیشل انوائٹ ٹو پرائم منسٹر برطانیہ، جناب محترم عبد الرحمان چشتی سنگھ. آپ نے بڑی تاریخ رقم کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ کی جو اچیومنٹ ہے اس پر تمام کشمیری، پاکستانی، برٹش فخر محسوس کرتے ہیں. کیا سیاسی زندگی ہے، اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور آپ کس طرح اس ملک کے اندر آئے؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے پروگرام پر آیا اور میں آپ کے چینل دیکھتا ہوں اور جیسے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ایشوز کو فور پر لاتے ہیں. میں آیا تھا 1984 میں. میرے والد صاحب اس وقت جرنگم مسجد کے امام تھے. میں آیا تھا امی کے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ، مجھے کوئی انگلش نہیں آتی تھی. 1984 جرنگم میں رہے، یونیورسٹی میں گئے، وہاں وکالت کی اور بیرسٹر بنے. جب میں 23 years of age تھا، میں لوکل کونسل کا ممبر بن گیا تھا ان میڈوے کاؤنسل. کینٹ سے جرنگم نارتھ لا کی ڈگری کی تھی. اس کے سمر میں نے پارلیمنٹ میں، اس وقت ایک ممبر پارلیمنٹ ہوتی تھی ہیلن برنٹن پیٹربرو سے، ان کے دفتر میں نے آ کے انٹرنشپ کی. 300 لیٹر لکھتے ہیں ڈفرنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو کہ مجھے سمر انٹرنشپ چاہیے، اینڈ ان سے 4 لیٹر واپس آئے. ایک کیبنٹ ممبر تھی روتھ کیلی، 2 ہو رہا تھے اور ایک ہیلن برنٹن تھی. اس کے بعد انٹرنشپ کی. انٹرنشپ دیکھا پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے. مجھے اس کا کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہی پارلیمنٹ کے کسی وقت ممبر پارلیمنٹ حصہ بنوں گا. جو میرے اپنے والد صاحب تھے وہ بھی پہلے کشمیر کے پالیٹکس کے حکومت کے ممبر تھے. پرائم منسٹر کے وہ بھی ایڈوائزر رہے ہیں. امیر خان صاحب کے ایڈوائزر تھے. بھٹو صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. ابھی میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں پولیٹیکل جرنی ایور 14 years. پہلی مرتبہ ممبر اسمبلی بنے، ممبر آف پارلیمنٹ بنے، پھر کس طرح آپ وزارت تک پہنچے. پھر میری اطلاع کے مطابق آپ وزیر اعظم برطانیہ کے بھی کینڈیڈیٹ تھے پارٹی لیڈرشپ. پولیٹیکل مینٹرز آپ کو سکھاتے ہیں سیاست کیسے چلتی ہے. 1999 میں جب میں سبزاد اسحاق صاحب کی میٹنگ کرا تھا پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ رحمان، وہ مجھے کہتے تھے رے، بیکاز میرے سب دوست مجھے کہتے تھے انگلسائز رے، کہ یہاں محترمہ بینظیر بھٹو آئی ہوئی ہیں اور ان کو بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، پارلیمنٹ کے انٹرن ہے، آپ کا انٹرویو میں ان سے کراتا ہوں. I was very fortunate، میرے پاس بہت شاندار پولیٹیکل مینٹورز تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ پالیٹکس ہوتی کیسی ہے، پبلک سروس کیسے کرتے ہیں. 2010 میں جو الیکشن تھے پارلیمنٹ کے، اس وقت جلنگم جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، جلنگم اور رینم، وہاں کا میں امیدوار تھا پہلی مرتبہ. پہلی بار. جلنگم اس وقت جو موسٹ مارجنل سیٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ 15 ووٹ either side
डिसाइड कर सकता है कौन जीतेंगे. Balancing your legal career and in the it was tough. But because मेहनत की अच्छी लोकल टीम थी, हम 8,000 से वो सीट जीत लिए. उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुआ, वो भी मुश्किल वक्त था. हम कोalition गवर्नमेंट थी, लिब डेम और कंजर्वेटिव की, फिर हम अल्लाह के करम से जीत गए. 2017 में जो मुश्किल वक्त था, जो टेरेसा मे डीलिंग कर रही थी ब्रेक्सिट वोट के बाद, अल्लाह के करम से हम वो जीत गए. उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, बोरिस जॉनसन जब वज़ीर आज़म साहब थे, उस वक्त भी पब्लिक कहती थी कि जो अनसर्टेनिटी है, ब्रेक्सिट को हल करना है, फॉरवर्ड ले जाएं. अल्लाह के करम से हमने वो भी जीत लिया. सो उसके ये 4 इलेक्शन थे, अल्लाह की करम से मेहनत से हमने जीते. और उसमें आप वज़ीर खाजा कब बने फिर आप? 2022 में. आप किस प्राइम मिनिस्टर? जो उस वक्त जो बोरिस जॉनसन साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे. उन्होंने मुझे कहा कि लोग, आप पहले जो मेरे स्पेशल एनवॉय होते थे फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, आपने शानदार काम किया है, आप फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं. मैं चाहता हूं कि आप हुकूमत में आए और फॉरेन ऑफिस में जाएं और फॉरेन मिनिस्टर बने. फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से और स्पेशल इनवाइट टू प्राइम मिनिस्टर बरतानिया की हैसियत से आपने वो क्या कार हादसा अंजाम दिए जिस पर आपको फख्र हो? जो एज ए स्पेशल एनवॉय फॉर द प्राइम मिनिस्टर 2019 की बात है, जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. उस वक्त जो इस्लामोफोबिया भी राइज पर था, एंटीसेमिटिज्म भी राइज था, इंटॉलरेंस अगेंस्ट फेथ कम्युनिटी दुनिया में बढ़ रही थी. एंड उस वक्त हमने जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलीग होते थे, एम्बेसडर सैम ब्राउनबैक, उन्होंने मुझे कहा कि रहमान करिए, हम कोई चीज़ को हल करना चाहते हैं, हमने एक इंटरनेशनल अलायंस क्रिएट करना है जिसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज उसमें शामिल हों. विद इन 4 months हमने 27 मुल्क की अलायंस सेटअप की. सो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, हम दोनों ने मिलके एक 26 मुल्का की एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑफ अलायंस बनाई. अभी तो 40 मुल्क हैं. हमने 4 महीनों में, उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है दुनिया में कैसे वो परसिक्यूट हुई थी. अल्लाह के करम से वो अलायंस को, जिसने उस वो मसला को हल कर सकती थी, हमने 4 महीनों में बना दिया था. सैंक्शंस हम ला रहे थे जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जो बर्मा में और जो रोहिंग्या मुसलमानों के अफेक्टेड हुए थे. उसी दौर में हमने फॉरेन सेक्रेटरी साहब को कहा था, जो डोमिनिक राब था, कि यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ, ये हमारे इंटरनेशनल पार्टनर भी सैंक्शन आ रहे हैं, हमने भी लाना चाहिए, बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया. हमने एक्शन वहाँ भी लिया. जो मेरे पोर्टफोलियो था वो सैंक्शंस थे. उस वक्त यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन पॉलिसी क्लियर थी कि हमने एवरीथिंग जो हम कर सकते हैं हमने करना है यूक्रेन की सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज जो यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है, उसको रशियन एग्रेशन और वायलेशन ने उसको इन्फ्रिंज किया हुआ है. एंड एज अ मिनिस्टर फॉर सैंक्शंस, you are responsible for implementing the toughest possible sanctions to cut off Russian finances for the illegal war in Ukraine. इनवॉय जब आप प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के रहे, पाकिस्तान के हवाले से आपकी जो लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? ये तो 2017 to 18 ये तो ट्रेड एंड यूनाइटेड किंगडम ट्रेड एनवॉय टू पाकिस्तान. इसमें जो उस वक्त पाकिस्तान को जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यूनाइटेड किंगडम से चाहिए थी, वो थी कि GSP+ ट्रेड स्टेटस. पाकिस्तान के साथ एक GSP+ ट्रेड स्टेटस यूरोप में था. उसी के लिए जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स आते थे यूरोप में, इसमें पाकिस्तान के जो मुल्क है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बहुत फायदा होता था. और उसमें जो पहले भी पाकिस्तान को GSP+ ट्रेड स्टेटस मिला था, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी वो शानदार थी. और उन्होंने हमें कहा था कि इसी बार आप तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, आपका यूनाइटेड किंगडम का बहुत असर है और मसरूफ है, आप सपोर्ट करें. हमने पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिला. पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज नहीं जा रही थी. जो मैरियट होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज नहीं जा रही थी. ब्रिटिश पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ 1.7 मिलियन बेशक बहुत है. उनको ये उनके लिए ये ऑप्शन होना चाहिए कि और एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट जाएं. हमने उस वक्त जो ब्रिटिश हाई कमीशन थे उस वक्त, क्रिश्चियन टर्नर, टॉम ड्रू लंदन में होते थे, अब्बास साहब एंड नफीस ज़करिया साहब, इन्होंने सब ने जो फोकस थी कि ब्रिटिश एयरवेज को वहाँ जाना चाहिए.
And अल्लाह के करम से 2020 में ब्रिटिश एयरवेज वापस पाकिस्तान डायरेक्ट चली गई। बरतानिया के वजीर आजम के एक वक्त में कैंडिडेट बन गया, पार्टी लीडरशिप के हवाले से भी आपका नाम सामने आया, तो क्या वजह बनी कि आप वो वजारत उज़्मा के हवाले से वो अचीव ना कर सके? जो दूसरे उम्मीदवार थे वो पहले डिफरेंट मिनिस्टर रह चुके थे। मैं कह रहा था कि लोग मैं एक नया मिनिस्टर हूँ, मेरे पास वो जो कुछों के पास जो बैगेज होता है वो नहीं है। मैं कहता हूँ कि फ्रेश आइडियाज होने चाहिए, मैं कहता हूँ कि फ्रेश फेसेस होने चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि मेरिट पर सिस्टम होनी चाहिए। मैंने समझा उस वक्त मैं पार्टी को मुल्क को ये ऑफर कर सकता हूँ। दुनिया के हालात आपके सामने हैं, गजा के सिचुएशन के बाद पूरी दुनिया के अमन को शदीद खतरात लाहक है, तो इस हवाले से आज आप बरतानिया का और बिलखसूस पाकिस्तान का किरदार आलमी अमन के हवाले से कैसा देख रहे हैं? Well, I think United Kingdom plays a key role. इस वक्त जो यूनाइटेड किंगडम की पोजीशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर यूनाइटेड किंगडम है, जो कॉमनवेल्थ में उसमें यूनाइटेड किंगडम के मेंबर हैं, जो G7 है उसके मेंबर यूनाइटेड किंगडम है, जो G20 है उसके मेंबर हैं, जो फाइव आवर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग के सिस्टम में उसमें बर्तन के मेंबर हैं. So United Kingdom has a massive convening power around the world, and United Kingdom ने अभी जो फलस्तीन को भी रिकॉग्नाइज किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने जो कनाडा के साथ, आप समझे अच्छा फैसला है बरतानिया का फलस्तीन को recognize? Absolutely, because मैंने ये पहले भी पार्लियामेंट में कहा था कि जो 1967 का जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल में ऑन टू स्टेट सोल्यूशन 67 बॉर्डर्स, वो ब्रिटेन ने ड्राफ्ट किया था. मैंने जब मैं पार्लियामेंट में था, मैं वही कह रहा था कि जो रेजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किया है जो ब्रिटेन ने, उसको हमने अपनाया किया जाए, बिकॉज हम जो दुनिया को कहते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सिस्टम, जैसे हम कहते हैं कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको रशिया ने इलीगली वायलेट किया है, उसको हम दुनिया को कहते हैं कि हमारे साथ आए, ये मसला को जो कानून के मुताबिक हल करें और यूक्रेन की सपोर्ट करें. इसीलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं फलस्तीन में, उनके जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें अरब कंट्रीज भी शामिल हैं, कहते हैं कि यहाँ 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस इन 67 बॉर्डर्स. सेम सिचुएशन कभी आप देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, कहते हैं कि कश्मीर का इशू हल होना चाहिए विद द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर. इसीलिए जो हम अब देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स सबको एक टेबल पर ले आ रहे हैं और मसले को हल करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो कश्मीर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लॉ को अपनाएं. तो आप जो 20 नकात ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो आप क्या उनसे इत्तेफाक करते हैं? आप कह सकते हैं अच्छी पेशरफ्त है? मेन पार्टी इशू है उसमें जो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर हैं, जब वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी सोल्यूशन है, जेन्युइन सोल्यूशन है, वो तो की पार्टी है, कहते वो कहते हैं ये सही सोल्यूशन है, जेन्युइन है और ये पीस अचीव कर सकता है. जो अरब स्टेट्स कहती हैं ये पीस हल हो सकती है, ऐसे पीस सीज फायर हो सकती है, हॉस्टेजेस रिलीज हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर मुल्क में जा सकता है, 2 स्टेट हल हो सकता है. पाकिस्तान कहते हैं कि अरब मुल्क कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, इजराइल ने तस्लीम कर लिया. सर रहमान चिश्ती कौन होता है कि ये अच्छा नहीं है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट. पाकिस्तान और इंडिया के कशीदगी के बाद क्या आप नहीं समझते कि मसला कश्मीर का हल नागजीर है, और आलमी दुनिया बिलखसूस बरतानिया और अमेरिका को मसला कश्मीर के हल के हवाले से क्या किरदार अदा करना है? जो कश्मीर का सिचुएशन है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जिसमें जो P5 मेंबर्स हैं उन सब ने सपोर्ट की थी, और वो P5 ने कहा था कि कश्मीर की जो अवाम है वो अपना फ्यूचर डिसाइड करे. सो आई थिंक जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो जो अमन चाहते हैं दुनिया में, वो यूक्रेन में को मसले को भी हल करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट को भी हल करना चाहते हैं, कि जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनली ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल को वो तो रेजोल्यूशन को सबने अपनाया है ना, वो रेजोल्यूशन को परमानेंट 5 जो मेंबर उन्होंने भी सपोर्ट किया है, हमारी हुकूमत ने भी किया है. देन यू हैव टू अप्लाई इंटरनेशनल लॉ, एंड इंटरनेशनल लॉ के सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक जो मसला है उसको हल कर दें. जो कश्मीर अवाम है, दे डिसाइड देयर फ्यूचर फॉर वंस एंड ऑल. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. आप इस मरतबा पाकिस्तान से अभी रिसेंटली वापस आए हैं, तो आज़ाद कश्मीर के दौरे के विज़िट के बारे में आपके क्या जज्बात आपके रहे हैं? आपको दौरा कैसा रहा? जो कश्मीर के अवाम है वो एक रेजिलिएंट अवाम है, उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज देखे हैं. डिफिकल्टी ऐसे देखें कि लोग 2005 में जो कश्मीर का अर्थक्वेक हुआ था, उसमें मेरे अपने 25 प्लस फैमिली मेंबर्स शहीद हुए थे. मेरे ग्रैंडफादर उस वक्त शहीद हुए थे अर्थक्वेक में. They've got a big heart. It's a beautiful country.
and there's massive opportunities, and it's one of the most beautiful parts of the world, جو کشمیر ہے. They want peace, they want security, they want opportunity. ان کو opportunity چاہیے. Today's interconnected global world, if we all work together on being good human beings, respecting international law, the world can be a better place. And so nice بہت to see شکریہ you. سر.